Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. So in continuation with that, so now if I want to underline any specific place, how can we underline it? I told you select that place, उस जगह को select कीजिए, पूरे document को underline करना है, पूरे document select कर लीजिए, and then press underline, the whole document will get underlined. But if we want to present something very specific as an underline, this line, and then press control and this line, and then this line, and then these two words, what we can do is that इनको हमने mouse button से left index finger button से और control से select कर लिया, and then we have pressed the underline button और वही जगहें जो है वो underline हो गई हैं. But in this way we proceeded. तो ये आ गया हमारा underline. So next one is something we need to signal a place that we have written, but we don't want to highlight that thing. We want to tell people that it is not desirable, but I have written as an reference. For an example, मैं मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ पर formatting का word नहीं लिखना चाह रहा था, but I did it, and but I did not want to write it, but it was my compulsion, मजबूरी थी मुझे लिखना था. Here is ABC underline. If you press this line, this whole format word will go under the line. So now it is visible, but it is showing the audience that I did not want to portray this thing. मगर मुझे मजबूरन लिखना था. This is not what I wanted, but it was a compulsion to write it for the reason that I want to make things understandable. मुझे आपको चीजें understand करानी है, मैं तब इसको यहाँ पे लिख रहा था. So we can signal that word, and we can signal that by putting a line on that specific word. और इस तरह से ये word जो है इसके ऊपर लाइन लग गई है, कट गया है, नजर आ रहा है, but it is signal like that. मैंने लिखना नहीं था, लेकिन मजबूरन मुझे लिखना पड़ा. And in this way, जब मुझे मजबूरन लिखना पड़ा तो मैंने उसको लिखा है. So now, if we talk about the place of the word I want that उसको मैं बाकी फॉन्ट से थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर कर दूं. नॉर्मली पावर्स के लिए यूज होता है. The next one is X2 and X3 buttons. अगर आप एक specific word को select करें, for example, insert, and you press X2, it goes down than the line. And if we press this one as in X3, it goes in the shape of power. ये ऊपर चला जाता है. For an example, if I write here 6, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो 6 will automatically go up. So that is what known as an automated power formatting. मगर अगर आपको ये automated power formatting as per the computerized pre-setting नहीं मिलती है, तो हम X2 और X3 के बटन से अपनी specific concern को highlight करने के लिए हम उसको raise up कर सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं. So it is what the function works for. So now next one is the color of the font. जो हम यूज कर रहे हैं उस कलर को हमने चेंज करना है. अगर तो हमने सारे डॉक्यूमेंट के कलर को चेंज करना है, तो फिर हम कंट्रोल ए करके जिस कलर में लिखना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए. पूरे का पूरा फॉन्ट, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो उस कलर में चेंज हो जाए. लेकिन अगर हम एक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं करना चाह रहे हैं, एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को करना चाह रहे हैं, 2 को करना चाह रहे हैं, वी विल प्रेस दैट कलर. फॉर एन एग्जाम्पल आई वांट टू मेक इट पर्पल. तो मैंने इसको पर्पल कर दिया है, एंड द होल वन इज इन द ब्लैक फॉर्मेट. वन स्पेसिफिक पैराग्राफ जो है ना वो पर्पल के अंदर. अगर मैं कुछ लाइन्स को करना चाहूँ, इवन आई कैन यूज दैट. मैंने पहले बताया, एक लाइन को सिलेक्ट कीजिए, लाइन सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल के बटन को दबाइए, एक और लाइन सेलेक्ट कीजिए, एक और लाइन सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल को दबाए. अब अगर आप यहाँ से फॉन्ट चेंज करके रेड करते हैं तो वो लाइन रेड हो गई है, बाकी सारी की सारी ब्लैक रह गई. सो अगर हमें फॉन्ट के कलर को चेंज करना है, तो फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए दिस बटन विल वर्क, जिसमें ए के नीचे कलर बना हुआ है. It is what the change of color of the font that we are using. Now, if we want to highlight, here if you see, यहाँ पे लिखा हुआ है A, B and साथ हाइलाइटर का निशान बना. अगर हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक, अगर हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक प्लेस, normally highlighters are used to highlight important word. It is used to highlight the important sentence. It is used to highlight the important concept. तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 तरीके हैं. हम उस प्लेस को सिलेक्ट कर लें. फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड आइटम गैलरीज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड आई एम गोइंग टू प्रेस दिस वन. जैसे मैं प्रेस करूंगा तो इनका बैकग्राउंड, सिर्फ इन्हीं का बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाए. सेकेंड वे इज के मैं हाईलाइटर पे जाऊँ, एंड आई प्रेस दिस एरो, मेरे पास हाईलाइटिंग के कलर्स खुल जाएंगे. सो आई टेक कलर एज ग्रीन. मैंने ग्रीन कलर ले लिया. अब मेरे हाथ में अगर आप देखें तो ग्लो भी कर रहा है. हाईलाइटर मैं भी यहाँ से ले रहा हूँ, ग्रीन हाईलाइटर मैंने ले लिया. अगर आप देखें तो ग्लो भी कर रहा है, और साथ में ग्रीन हाईलाइटर जो है वो फॉन्ट के ऊपर घूम रहा है. जहाँ मेरा ग्लो जा रहा है वहाँ पे साथ मेरे हाथ के हाईलाइटर बना हुआ है मेरे माउस के साथ. अब अगर मैं इसको किसी वर्ड के ऊपर रखता हूँ तो जितना ड्रैग करके ले जाऊंगा माउस को, उतना एरिया ग्रीन हो जाएगा. मैं ड्रैग कर रहा हूँ, जैसे ही मैं ड्रैगिंग छोड़ूंगा माउस का लेफ्ट
बटन आई मीन जो मेरा इंडेक्स फिंगर के नीचे का बटन है, मैं उसको जहाँ पे अब छोड़ूंगा वहां तक सारे का सारा जो लाइन है उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। सो अगर मुझे एक स्पेसिफिक जगह को करना है तो सिलेक्ट करके आप हाईलाइटर प्रेस कर लें। और अगर आपने उसको लगातार हाथ में यूज करना है जैसे आप नॉर्मल कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, ताकि आप लोग जो है वो कुछ जगहों को एट ए ग्लांस एक साथ कर सको, तो व्हाट विल आई डू, आई हैव टेकन दिस वन, मैंने हाईलाइटर हाथ में पकड़ लिया है। और हाईलाइटर को मैंने पकड़ने के बाद मैंने व्हाट आई डिड, मैंने हाईलाइटर को पकड़ने के बाद उसको ड्रैग कर दिया। जहां जहां ड्रैग करता जाऊंगा वहां वहां पे वो वर्ड जो हैं वो ग्रीन होते चले जाएंगे। एंड इन दिस वे आई कैन वर्क, in this way I can work. So it is the use of the highlighter, ये हाईलाइटर का यूज है। एंड हाईलाइटर के यूज से हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसकी मल्टीपल प्लेसेस के अंदर नोटिसेबल थिंग्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट चीजों को हम हाईलाइटर के जरिए अटेंशन सीकर बना सकते हैं। हम उन जगहों को इंपॉर्टेंट कंसीडर करा सकते हैं। हम उन जगहों को अपने रेफरेंस के लिए नोट्स बनाते हुए उन जगहों को जहाँ पे मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मुझे रिफ्रेश करना है, उनको ज्यादा देखना है रिवीजन में, मैं उन चीजों को हाईलाइट कर सकता हूँ। रिपोर्ट में उन पॉइंट्स को कंसीडर करना जरूरी है रीडर के लिए, उन जगहों को मैं हाईलाइट कर सकता हूँ जिस तरह की कॉमन लाइफ में हम हाईलाइटर बाय हैंड यूज करते हैं। So now next one is the document adjustment. So now document adjustment क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट बटन्स बने हुए हैं। Here it is the align left, here it is align center, here it is align right, and it is justified. अगर आप यहाँ पे आप देख रहे हो गौर से तो हर लाइन का एंड डिफरेंट, हर लाइन का एंड डिफरेंट, हर लाइन का एंड डिफरेंट। इफ आई वांट दैट ये सारे का सारा जो है ना लाइंस इधर से और इधर से ऐसी ही हो, सारी की लाइंस की विड्थ एक जैसी ही हो, जहाँ पे इस साइड पे हो रही ऐसी इधर भी हो, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना होगा? आई विल वर्क ऑन कंट्रोल ए, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। देन ये दिखा हुआ है जस्टिफाई, मैंने इसको प्रेस कर दिया एंड नाउ इफ यू सी ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बराबर अलाइन। सो सारी लाइंस की विड्थ बराबर है except one thing. What that one thing is? First line. Now, last line of every paragraph you will see that ये छोटी है because यहाँ पे वो खत्म हो रहा है। बाकी सारी जो लेंथी लाइंस है उनकी लेंथ लेफ्ट और राइट साइड से बिल्कुल बराबर होती है। So it is a justification or justified format of the report or for the writer. अगर मैं ये प्रेस करूंगा तो सारा टेक्स्ट राइट पे अलाइन हो जाएगा, राइट से सारी लाइंस मार्जिन पे होंगी और लेफ्ट से लाइन जो है वो वहां पे हाजिर हो गए हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द सेंटर तो सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो मेरा सेंटर में अलाइन हो गया। इफ आई टॉक अबाउट दिस वन तो सारे का सारा मेरा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन हो गया। इस तरह से अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को लेफ्ट अलाइन करना है, हमने अपने डॉक्यूमेंट को राइट अलाइन करना है, हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेंटर अलाइन करना है, या हमने अगर अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो जस्टिफाई करना है, तो दीज 4 buttons would be very healthy, जिनको हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं और हम करेंगे। तो हम जब इनको इन बटन्स के जरिए आई मीन टू से if we want to put the document over on the left side, use this button, on the right side, use that button, and the center, use that button. And if we are going to make, or if we want to make all lines align from the both of the side, left से भी right से भी, और कोई line दूसरी से बड़ी ना हो, तो उस सूरत में we can make a justified case, तो मैं उसको justify कर सकता हूँ। So these all 4 buttons will be very good. Next one here is you see is there an arrow, एक arrow बना, और इस arrow के साथ जो है वो निशान बने हुए हैं 2 तीर के, एक ऊपर को जा रहा है एक नीचे को जा रहा है। व्हाट दिस फॉर? ये आपके लाइंस और पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेसिंग कंट्रोल। अगर आप जहाँ पे इस टेक्स्ट को देखें जो आपको वर्ड ने दिया है, तो हर लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई, हर लाइन दूसरी लाइन के साथ साथ जुड़ी हुई, हर लाइन दूसरी लाइन के साथ साथ जुड़ी हुई। सुना, मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ पैराग्राफ, ये नहीं करना। अब मैं इस डाउनवर्ड एरो को प्रेस करूं, प्रेस हो गया। अब देखिए लिखा हुआ है 1.0, और 1.0 प्रेस किया तो देखिए अब और नैरो हो गई हैं लाइंस। 1.15 थोड़ी लाइन उसी पैराग्राफ 1 की बात कर रहा हूँ, मैं उसको डिफरेंट कलर का कर देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ रेड। अब आप इस रेड वाले पैराग्राफ को देखते हैं। जब मैंने इस एरो को प्रेस किया, इस एरो को प्रेस करने से 1.5 लाइन्स की विड्थ बढ़ती जाए, 2.0 लाइन की विड्थ और बढ़ गई।
2.205, 3.0 एंड देन लाइन स्पेसिंग आपको खत्म होगी अल किस्सा मुख्तसर। आप जब डॉक्यूमेंट शुरू करते हैं कभी आपको लगता है लाइन से बहुत ज्यादा गैप है, वो गैप जो पड़ा होता है वो कंट्रोल कैसे होगा? दिस विल बी द प्लेस। अगर आप गैप को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, दिस विल बी द प्लेस दैट यू कैन यूज। ओके, कुछ स्पेसिफिक एरिया के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस। आगे चलिए। सो नाउ अब ये तो था लाइन की स्पेसिंग, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ दोबारा से। ये तो थी लाइन की स्पेसिंग। अब अगर हम इन पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेसिंग का जिक्र करें तो अगर आप यहाँ देखो तो इन पैराग्राफ्स के दरमियान में यहाँ पे स्पेस बने। दिस स्पेस कैन बी इंक्रीज्ड, दिस स्पेस कैन बी डिक्रीज्ड एज वेल। कैसे? इन दो पैराग्राफ्स को जरा सेलेक्ट, इन दो पैराग्राफ्स को सेलेक्ट। अब यू हैव टू सी ऑन दिस प्लेस, ये दरमियान में जगह है ना, मैं ग्लो भी करा रहा हूँ, आपने इस जगह को देखा, इस जगह को देखा। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट इट और अब आप इस जगह को देखा। आई एम गोइंग टू प्रेस दैट बटन अगेन और ये देखिए लिखा हुआ है एड स्पेस बिफोर अ पैराग्राफ, एड स्पेस, रिमूव स्पेस आफ्टर अ पैराग्राफ। हर पैराग्राफ से पहले स्पेस डालेंगे तो देखें वो दो पैराग्राफ के दरमियान जगह वाइडर है। जब मैं रिमूव करता हूं तो दो पैराग्राफ आपस में जुड़ते हैं। सो इफ यू वांट दैट आपके पैराग्राफ्स के बाद आपकी एक लाइन खाली हो तो यू हैव टू डू व्हाट? ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। पर अगर आप ये चाहते हैं कि दो पैराग्राफ्स के दरमियान बिल्कुल जगह खाली ना हो बल्कि वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए तो देन रिमूव स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ। अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो आपके दो पैराग्राफ आपस में जुड़ जाएंगे, मगर ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं होगा, ये समझ लें। लेकिन ये आपने सिलेक्ट, आप जब इसको जिन पैराग्राफ्स के ऊपर सेलेक्ट करेंगे ये उन्हीं के दरमियान होगा। अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाके करना है, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल ए के बटन से आपको या माउस से पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा and then you will apply this specific function. So it is what known as the function of adjustment of the line spacing and the paragraph spacing in the document. आगे ये देखें कि एक बना हुआ है बॉक्स ऑफ पेंट। दिस बॉक्स ऑफ पेंट एंड उसके नीचे एक कलर की पट्टी बनी है। इसके एरो को प्रेस करता हूँ, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स। व्हाट दीज डिफरेंट कलर्स आर? दीज आर नोन एज बैकग्राउंड शेड्स। इनको कहते हैं बैकग्राउंड शेड। हम अपने डॉक्यूमेंट की ब्यूटिफिकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये डॉक्यूमेंट लिखा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो की कॉन्सेप्ट है ना वो पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर दिया। मैंने पैराग्राफ नंबर 2 को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे चला गया, इसमें शेड करने के लिए मैंने उसको ऑरेंज कर दिया। नो यू सी कि आपके जो टेक्स्ट है, मैं पूरा पेज की बात नहीं कर रहा, दिस शेडिंग विल बी ऑफ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट जिसको आपने सिलेक्ट किया था उसका बैकग्राउंड उस कलर का हो जाएगा जिसको आप करना चाहते, तो आपने इसको ऑरेंज कर दिया। अगर आपने एक और पैराग्राफ को लास्ट वन इसको भी आप हाईलाइट करना चाहते, आप वापस जाए शेडिंग पे, पर आपने शेडिंग को प्रेस किया, आप इसको पर्पल करना चाहते हैं, यू प्रेस पर्पल, ये ब्लू करना चाहते हैं, प्लस ब्लू, ग्रीन करना चाहते हैं, ग्रीन कर दें। और अब आप देखिए आपके दो पैराग्राफ्स नॉर्मल फॉन्ट में, दो जो है उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट की डिफरेंट प्लेसेस को बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं डिफरेंट फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पस, बिकॉज ये हाईलाइटिंग पर्पस नहीं है। हाईलाइटिंग पर्पस के लिए ये हाईलाइटर यूज होता, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए। If we want to make a thing beautified or a place look more beautiful or a document formatting should look good, तो उस सूरत में हम कुछ स्पेसेस को, कुछ प्लेसेस को बैकग्राउंड के जरिए, डिफरेंट कलर्स के जरिए ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा अटेंशन सीकिंग बना सकते हैं। एक पेज डिफरेंट कलर का कर देंगे, एक पेज के फॉन्ट को डिफरेंट कलर का कर देंगे, एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर एक पैराग्राफ के बैकग्राउंड को डिफरेंट कर देंगे। So this can be used for beautification. Even can be highlighting, लेकिन highlighting के फंक्शन से ज्यादा बेहतर highlighting and important consideration यूज की जा सकती है। So आपने इस बटन के जरिए जैसे पेंट बना हुआ है along with the color line, हम अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस की बैकग्राउंड को चेंज करना चाह रहे हैं, एक लाइन को चेंज करना चाह रहे हैं, इवन वन लाइन भी हो। So this can be for highlighting any specific font background or paragraph background, even the whole page background, but not entire page. होल पेज राइटिंग बैकग्राउंड तो है लेकिन पूरे पेज के कलर को चेंज नहीं कर सकता। वो हम अगली जो इंटरफेस का नेक्स्ट विंडो होगी उसमें जाके हम पढ़ेंगे कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आप कैसे उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। दैट विल बी अ डिफरेंट फंक्शन दैट विल नीड वापस से। So now next one here is a button. If you see this button over here, this button over here, this button has a shape of a box.
it is for the sake of border or putting a border around the text. अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को अगर आपने बॉर्डराइज कर बॉर्डर में डालना है तो आप इस बटन को यूज करें. कैसे? मैंने इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, पैराग्राफ नंबर 1, और मैंने इस एरो को प्रेस किया. मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं. आप बॉटम पे डालना चाहते हैं बॉर्डर, आप टॉप पे डालना चाहते हैं बॉर्डर, आप लेफ्ट पे बॉर्डर डालना चाहते हैं, आप राइट पे बॉर्डर डालना चाहते हैं, सारा बॉर्डराइज करना चाहते हैं, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बॉर्डर्स कैसे करना चाहते हैं आप. फॉर एग्जांपल आप प्रेस करते हैं टॉप ऑफ की, इसके टॉप. अब देखिए इसके टॉप पे एक लाइन आ गई. अक्सर हमने देखा होगा हेडिंग के नीचे पूरी लाइन लगी होती है. नॉर्मली वी यूज दिस फंक्शन, राइट. हमने इस पैराग्राफ के ऊपर अगर एक हेडिंग, फॉर एग्जांपल मैंने इस यहाँ पे इसको हेडिंग बनाना होता, मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ, मैंने इसको हेडिंग बनाना है एंड आई वांट दैट कि इसके नीचे एक लाइन लगी हो पूरी की पूरी एंड तक चली जाए. तो दो तरीके मैं लाइन ड्रा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस सेलेक्ट करता हूँ इस पैराग्राफ को. नाउ आई कम ऑन दिस वन एंड बॉर्डर ऑन द टॉप. तो आप देखिए कि इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर बन गया. तो ऐसे लगता है कि जिस तरह से इस हेडिंग के नीचे बॉर्डर बन गया. सो दिस इज अ बॉर्डर बटन. आप अपने पैराग्राफ के लेफ्ट पे डालना चाहते हैं, सिलेक्ट करें पैराग्राफ, गो ऑन द बॉर्डर फंक्शन, प्रेस लेफ्ट बॉर्डर. देखिए यहाँ पे साइड पे बॉर्डर बन गया. these all borders, these surrounds, these all things can really make your document very fascinating. Believe me, एक दुनिया की बड़ी पुरानी कहावत है, ज़हन में रखिएगा. People remember what they see. पूरी कहावत को जानना चाहते हैं तो people forget what they listen. लोग भूल जाते हैं वो जो सुनते हैं, but they remember what they see. मगर वो जो देखते हैं ना उनको कभी नहीं भूलता. So खूबसूरती of your document, picturization of the document, formatting of the document can really bring the interest of audience for you. जिनके लिए आप ये लिख रहे हैं, आप जितना खूबसूरत करेंगे लोग उतने शौक से पढ़ेंगे. अब मैंने एक पैराग्राफ और सिलेक्ट कर लिया और अब मैं इसके जा रहा हूँ ऑल साइड बॉर्डर. मैंने प्रेस किया, इसके चारों तरफ बॉर्डर आ गए. ओके, सो दिस बॉर्डर फंक्शन कैन बी यूज्ड to place borders or lines in and around your document, and this will be used. Certain times हम इस बॉर्डर को, मैंने सिलेक्ट किया पहले पैराग्राफ को, सर्टेन टाइम्स हम इस बॉर्डर को ड्रा कर सकते. हम इस बॉर्डर के कलर को चेंज, वर्ड्स देवर बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है बॉर्डर एंड शेडिंग. हम प्रेस. अब वो मुझसे पूछ रहा है कि बॉर्डर कैसा चाहते हैं. बॉर्डर, पेज बॉर्डर, ये पूरे पेज में. शेडिंग वो कैसी चाहता है. फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आ रहा हूँ बॉर्डर से. मैंने कहा बॉर्डर मुझे लाइन की सूरत में नहीं चाहिए, बॉर्डर मुझे चाहिए डॉटेड लाइन की सूरत में. तो मैंने प्रेस कर दिया डॉटेड लाइंस को. देन कलर मुझे ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, कलर मुझे चाहिए रेड कलर. तो मैंने रेड प्रेस कर दिया. और आपको पूछ रहा है विड्थ कितना, मुझे लाइन की चौड़ाई कितनी है. तो मैंने उसको कहता हूँ कि लाइन की चौड़ाई 3 पॉइंट्स के बराबर करता हूँ, थोड़ी बड़ी है. आप प्रेसिंग ओके. पर आप देखते जो मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किया था वो इस तरह का. अब मैं इस पैराग्राफ पे आता हूँ, आई वांट इसका बॉर्डर टॉप पे. आप प्रेस्ड इट बॉर्डर. तो पूछ रहा है बॉर्डर कहाँ चाहिए. तो मैं उनको बता रहा हूँ कि ये पेज बॉर्डर. मैंने फिर बॉर्डर लेके स्ट्रेट लाइन, कलर इज ऑटोमेटिक, एंड कहाँ अप्लाई करना है, अप्लाई टू पैराग्राफ, अप्लाई टू टेक्स्ट. ओके, एंड नाउ आई प्रेस्ड इट. आई एम सॉरी, आई मिस्ड इट. Select the text, go on the borders, border and shade. So now what I did, मैंने border को dotted line से हटा के straight line, color red, and इसकी मैं width को बढ़ा के थोड़ा ज्यादा. वो कहता है apply on the मैंने पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिया. हम वर्क करेंगे और अब मेरे पैराग्राफ के एक बॉर्डर. सो इन दिस वे आई कैन यूज दिस बॉर्डर फंक्शन फॉर माई टेक्स्ट. अब यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने रिमूव कर, आई सिलेक्टेड इट, आई गो बैक इट. I'm going to work on no border, and then I'm going to select. I've selected this one. Place it. And पे जाएं, border and shade. What border you want? हम चाहते हैं जी border इसमें करना. फॉर एग्जाम्पल हम इसमें border चाहते हैं dotted lines, and then वो मुझसे पूछा बॉक्स में चाहते हो, शेडो में चाहते हो, 3D custom, ओके, और द हॉरिजॉन्टल लाइंस. मैं ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता. आई डोंट वांट टू मेक इट कंफ्यूज. कलर ऑटोमेटिक, आई एम सेइंग इट शुड बी इन द रेड. मैं रिपीट कर रहा हूँ.
कितनी विथ होनी चाहिए लाइंस की, मैंने उसको बता दिया इतनी विथ, जितना आप बड़ा करना चाहिए, विथ मीन्स द साइज ऑफ। अब मैंने जब इसको देखा कि पैराग्राफ पे अप्लाई करें, मैंने पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिया, प्रेस ओके। सुनो, मेरे पैराग्राफ पे एक वो बॉर्डर बन गया। व्हाट बॉर्डर आई हैव सिलेक्टेड, दैट दैट इज अराउंड दैट इज अराउंड 1। अब अगर मैं इस बॉर्डर को जो चारों तरफ आया था, मैं इसको सिर्फ एक साइड पे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर दिए हुए बॉर्डर एडजस्टमेंट से इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैं जहां जहां पे लेके आना चाह रहा हूँ, राइट से रिमूव कर दिया, सिर्फ बॉटम पे रह गया। तो मैं जैसे जैसे इसको एक दफा पूरे बॉक्स के अगेंस्ट बन जाए, टेक्स्ट के अगेंस्ट बन जाएगा बॉक्स, उसको मैं अगर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं कहीं से हटाना चाह रहा हूँ, तो आई कैन रिमूव द लाइंस, आई कैन रिमूव द लाइंस बाय गिवन ऑप्शन ऑफ द बॉर्डर फ्रॉम दिस वन। तो इस तरह से मैं बॉर्डर को कस्टमाइज कलर में भी चेंज कर सकता हूँ। आई एम रिपीटिंग दैट थिंग वंस अगेन। सिलेक्ट योर पैराग्राफ, गो फॉर द बॉर्डर्स, बॉर्डर को प्रेस कीजिए, आप जिन बॉर्डर को करना चाहते हैं उस बॉर्डर को आप सिलेक्ट कीजिए, कलर को सिलेक्ट कीजिए ब्लू में। आप पैराग्राफ के अगेंस्ट चाहते हैं, विड्थ बढ़ाना घटाना चाहते हैं, यहां से होगी, विड्थ को बढ़ा दीजिए, प्रेस ओके। अब आपके सारे डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, आई एम सॉरी, फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द बॉर्डर्स, नो बॉर्डर, no border. Now the draw the border and it is here borders and shading. After the border and shading, आपको कौन सा चाहिए, अब मैं प्रेस कर दिया, बॉक्स की सूरत में चाहिए, बॉक्स बन गया, कलर विथ सिलेक्ट होगी, पैराग्राफ में प्रेस ओके। अब आपका बॉर्डर आपके पैराग्राफ के अगेंस्ट आ। अब अगर आप चाहते हैं कि सर इसमें कुछ रिमूव कर दूं और बॉर्डर डिफरेंट कलर का भी होना चाहिए, आई गो अगेन, मैंने जहां जहां पे रखना है, मैं अगर इसको प्रेस कर देता हूँ, यहाँ से गायब हो गया, मैं जिस चीज को सिलेक्ट करता जाऊंगा वहां वहां से वो गायब होता जाएगा, वो गायब हो गया। एंड देन अब मैं राइट से भी गायब करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड आई वर्क ऑन इट एंड इन दिस वे। अब वो एक लेफ्ट पे रह गया है, ओनली वन साइड, राइट पे रखता तो राइट पे रह जाता। तो इस तरह से हम बॉर्डर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने कलर के हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी विड्थ के हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी लाइन को सॉलिड रख के, डॉटेड रख के, स्टार भी कर सकते हैं। हर एक स्पेसिफिक ऑप्शन इज अवेलेबल। एरो, लास्ट वन इज बॉर्डर्स एंड शेडिंग। स्टाइल क्या होना चाहिए, ये सारा आपके सामने दिया हुआ है, कलर नंबर 2 पे है, विड्थ यहाँ पे है, ओके। एंड इन दिस वे, अगर आप इसको पूरे पे नहीं जाते, टॉप पे चाहते हैं, टॉप पे प्रेस कर दें, बॉटम पे सिर्फ चाहते हैं, बॉटम पे प्रेस कर दें, जहां आप चाहेंगे वहां वो बॉर्डर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी आपने इसको फिर सिलेक्ट कर दिया, हम कहते हैं नो बॉर्डर्स, खत्म हो गए। नाउ सिलेक्टेड बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। नाउ हमने कहा स्टाइल, इट शुड बी दिस वन, कलर ब्लू, सॉलिड हमने कर दिया। हम चाहते हैं कि ये टॉप पे आ जाए, एंड प्रेस ओके, एंड दिस इज ओनली ऑन द टॉप। तो आप जब पेज की बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, चारों तरफ आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली टॉप पे करना चाहते हैं तो वहीं से बॉर्डर एंड शेडिंग के टॉप के बटन को दबाएंगे तो शेडिंग के टॉप पे आ जाएगा। अगर आप बॉक्स में बना के बाहर आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे गिवन ऑप्शन से इसको रीएडजस्ट किया जा सकता है। मगर आसान तरीका ये है कि जहाँ पे आप बॉर्डर एंड शेडिंग्स में गए हैं, यहीं पे यहाँ दिए हुए अपर लोअर केस के ऑप्शन को यहीं से लेफ्ट राइट यहीं से सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको वहां दोबारा काम ना करना पड़े मेन इंटरफेस पे। लेकिन अगर आप एक बटन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो हर बटन सिलेक्ट होता जाएगा, चारों बटन एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको चारों तरफ नहीं चाहिए, सिर्फ लेफ्ट साइड पे चाहिए, इसको भी स्विच ऑफ कर दें, इसको भी स्विच ऑफ कर दें, इसको भी स्विच ऑफ कर दें, एंड प्रेस ओके, एंड इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ओनली। इट इज व्हाट द बॉर्डर सेटिंग ऑफ the against the text. Another class is now going to end. बॉर्डर सेटिंग तक हमने डिस्कस कर लिया है। हम अपनी अगली क्लास को बॉर्डर सेटिंग से ऑनवर्ड शुरू करेंगे, एंड हम हेडिंग, सब हेडिंग, नंबर इंसर्शन, और फिर दी रिपोर्ट फॉर्मेटिंग, इंडेंटिंग, और फिर हेडिंग डिजाइनिंग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर। अभी यहाँ पे एक भाई हैं, पहले रिकॉर्डिंग बंद करूँ मैं फिर उनको रिस्पॉन्ड